تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان پڑھانے کی اگر کوشش کریں تو آپ پڑھا سکتے ہیں، اور اگر اس میں بھی اگر پڑھانے کی اہلیت نہیں تو پھر پڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ جب دورہ حدیث شریف سے بھی فارغ ہو جائیں گے تو ملک یا بیرون ملک، علاقے یا کہیں بھی یا دیگر مجالس یا شعبہ جات میں کہیں بھی آپ ہوں گے تو وہاں مدنی کام کے بغیر ہم کیسے آگے بڑھ سکیں گے؟ تو مدنی کام کرنے کی مدنی التجا ہے۔ مشوروں میں جا کر ہمارے یہاں مشورے نہیں ہوتے، مدنی مشوروں میں جا کر تنظیم آتی ہے۔ آج سب حاجی صاحب ان کو 1200 مرتبہ آپ کو مدینہ مدینہ لکھنا ہے، انشاءاللہ بالکل، یعنی کہ وہ مدنی مدینہ سب آپ انشاءاللہ عز و جل۔ حاجی صاحب کہنا بھی منع کر رہے ہیں، میں نے اصل منع تو میں نے کیا کہ مجھے بعض اوقات تشویش ہوتی ہے۔ حاجی صاحب کون سا حاجی صاحب؟ یہاں تو ہر رکنیشور حاجی صاحب ہے ہمارا، حالانکہ حاجی نہیں کیا تو بھی حاجی صاحب ہے، سب نے حاجی نہیں کیا۔ اور جو بیچارہ کئی حج کرے گا اور وہ اگر بڑی ذمہ داری ورنی ہے تو اس کو فلاں بھائی یوں بولیں گے۔ غریب آدمی حج کرے گا اس کو وہ حاجی نہیں بولے گا۔ مالدار آدمی بھلے وہ لندن اور یو کے دورے کرتا ہو اس کو حاجی صاحب بولیں گے۔ کیا ہمارے یہاں تو ایسا نہ ہو کم از کم دعوت اسلامی میں؟ تو اس لیے وہ میں نے خود درخواست کی ہے، حاجی بولنے کا ہی اگر جذبہ ہے حاجی عمران بولے، حاجی صاحب سے عادت نکلے تو اچھا، لیکن خیر نکل نہیں رہی، وہ دیگر ذمہ داران بھی حاجی صاحب بولتے ہیں، مختلف ذمہ داروں کو، بڑی سطح کے ذمہ داروں، چھوٹی سطح کون پوچھتا ہے بیچاروں کو، تو زبان پہ چڑھا ہوا ہے۔ ذرا جامعہ پڑھتے ہیں، جامعہ پڑھتے ہیں، واٹ از جامعہ؟ کوئی تنے جامعہ؟ تو جامعۃ المدینہ، لفظ مدینہ پتہ نہیں کیوں مائنس ہو جاتا ہے، المدینۃ العلمیہ، تو علمیہ بولتے ہیں ہم لوگ، تو اگر المدینہ بولے چلو علمیہ مائنس کر دیں تو علمیہ، جامعہ، مدرسہ، مدرسۃ المدینہ، حالانکہ مدرسے ہزاروں ہیں، ہمارا مدرسۃ المدینہ ہے۔ ہم یوں ویسے عاشقان رسول کہلاتے ہیں، عاشقان مدینہ کہلاتے ہیں، لیکن لفظ مدینہ ہماری زبان پر نہیں آتا۔ مشورہ، مدنی مشورہ، جبکہ وہ اجلاس یا میٹنگ جس کو کہا جاتا ہے وہ مدنی مشورہ، آپس میں جو کیا ہم نے، میں نے اس سے مشورہ لیا، میں نے اس کو مشورہ دیا، یہ تو اس میں لفظ مدنی بولنے کی حاجت نہیں ہے، کہ وہ ہماری اصطلاح وہ ہے، میٹنگ اور اجلاس کی جگہ ہم مدنی مشورہ بولتے ہیں۔ اسی طرح نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے جو ماہانہ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، یہ بارگاہ کو بھی ذرا ہٹانا پڑے گا، یہ داڑھی منڈے کی بارگاہ ہوتی ہے، فاسق مولین کی بارگاہ ہوتی ہے ہمارے یہاں، یہ واقعی بولتا ہوں سب کی بارگاہ ہوتی ہے، یہ ہماری اصطلاح بن گئی ہے بارگاہ۔ چلو ان کیا آپ نے بارگاہ کہا تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ داڑھی منڈوں کو بھی بولتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں حضور عرض کیا نا، اب پھر تعظیم کس کا نام ہے؟ فرمایا آپ نے، یہ بھی تعظیم کا لفظ ہے، جیسے بات بات پہ ہم بولتے ہیں کرامت ہے اس کی۔ اسی طرح انفرادی کوشش میں ہم جب نئے اسلامی سے ملتے ہیں داڑھی منڈے سے تو کھڑے ہو کے اس کو گلے لگاتے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے اس کو، تو یہ کھڑا ہونا تعظیم آئے گا اس میں؟ تعظیم ہے، کھڑے ہو کر استقبال کیا اور یوں گلے لگایا، تعظیم تو ہے یہ۔ تو بہت ہمارے ہاں عام ہے۔ اگر ایسا معاملہ کہ ہم اس کی تعظیم کریں نہ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا، تو بعض تعظیمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، تو وہاں اجازت مل جائے گی۔ تو پھر انفرادی کوشش کرنے میں تو شر والا تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا، مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ماحول میں آ جائے، تو اس کو ملتے ہیں کھڑے ہو کے، تو پھر یہ پھر ماحول بولا آپ نے، مدنی ماحول میں 1200 سے کچھ بڑھ نہ جائے پھر۔
लिखने वाला काम। पापा ये 1200 कब तक लिख कर दे देंगे? यही बताएंगे। नियत करता हूँ इंशाल्लाह लिख के दूं 1200 चलो इंशाल्लाह। सजा माफ किया। जज़ाकल्लाह नहीं, खैर। असल दौर हदीस शरीफ पढ़ते हैं, अगरचे दूसरे दर्जों के मुकाबले में इस पे कम कम होता है, लेकिन दूसरे मुताले वगैरह करते होंगे। मदनी इल्तिजा ये है कि आप अपने अपने यहाँ जामिअतुल मदीना जहाँ जहाँ कायम है इसके इलाके या जाओ जो करीबी जो हलके हैं हमारे, इनमें कुछ न कुछ मदनी काम करने की आदत रखिए। ये सब मदनी काम करेंगे इंशाअल्लाह। नियत तो करो। इन्हें अब तक नहीं करते थे, अब करेंगे। एक तादाद ने तो हाथ उठाया कि ये हैं पहले से काम नहीं, किसमें जिम्मेदारान भी होंगे, अच्छी सत्ता होगी जिनके पास जिम्मेदारी की भी, ये काबीना भी शायद होंगी बाजों के पास। बाज नहीं करते होंगे काम, बाज जिम्मेदारी पर रहते हुए काम नहीं करते होंगे, बाज जिम्मेदारी ना होने के बावजूद मदनी काम करते होंगे। इस तरह क्या होता है, तो नसीब अपने अपने। तो जिम्मेदारी वाले को तो ज्यादा काम करना चाहिए जाहिर, और जिनकी जिम्मेदारी नहीं है उनको भी काम करना चाहिए। असल मकसूद रिजाए इलाही हो। अब अमील सुन्नत से कुछ सवाल जवाब कर लें। पापा पहले एक मदनी वर्जिश करवा दी जाए। अच्छा यूं है, जी पापा। किस किस को नींद चढ़ी है? माशाअल्लाह। अंदर ये भी मैंने सच बोलने पर उतर आए ना, तो खड़े होकर करें या बैठे बैठे करें? खड़े होकर, नींद जल्दी उड़ेगी शायद। पापा आप जैसा फरमाए हम करेंगे। खड़े होकर 12 मरतबा करना है। मरहबा मीठा मदीना, 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 मरहबा मीठा मदीना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पापा ये दर्जे में भी कर सकते हैं? अगर उस्ताद साहब करवाते हैं तो नींद वाकई तलबा को हो रही है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तालीम में, बल्कि तालीम का नुकसान दूर करने के लिए तो करवा रहे हैं, इसमें तो कोई हरज नहीं है। नींद आ जाना बैठे बैठे, अब इसमें क्या सजा, बेचारे का कसूर क्या कहेंगे, बेकाबू होती है नींद, वल्लाहु अलम। इसमें सजा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कसूर की बात ये कि उसने रात आराम नहीं किया बाबा, रात ये मोबाइल फोन पे लगे रहे या वो तो उज़र हो तो अपनी जगह पर है, लेकिन अब रात भर जागे या रात का अक्सर हिस्सा जागे और फजर से थोड़ी देर पहले सोए, अब दर्जे में आकर ये सो रहे हैं, तो अब ये तो इनका कसूर कहलाएगा नहीं कहलाएगा बाबा? इस सूरत में तो कसूर होना समझ में आता है, जबकि बिला जरूरत, यानी कि जिसका ताल्लुक तालीम से या कोई उज्र से ना था, सही उज्र से वो जागा है। बाजू सही उज्र से भी जागता है, घर में कोई बीमार हो गया या कुछ इसमें कोई भागदौड़ करनी पड़ी। बाबा मैं ही पहला सवाल आपसे कर लेता हूँ कि मुहतात फिद्दीन से मुराद क्या होती है? मुहतात फिद्दीन का जज्बा पाने के लिए हमें क्या अंदाज इख्तियार करना पड़ेगा? मुहतात फिद्दीन, इसके माना है दीन के मामले में मुहतात, एहतियात बरतने वाला। मुहतात फिद्दीन तो चले गए मज़ारों में, ऐसा लगता है, या है तो मतलब अकल कलील। अब बेबाकी का दौर बहुत है, और बस क्या अर्ज करूं, शायद इसमें समझते होंगे आप भी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मुहतात फिद्दीन होगा ना, वो तो पहले तोलेगा बाद में बोलेगा। इधर तो मतलब गुस्सा दिमाग में भरा होता है, और अगर कुछ पूछा गया और नहीं मालूम तो फौरन नफ्स गालिब आता है कि तू मना करेगा तो तेरा तो नाम है, कैसे कैसे कहेगा, मुझे नहीं मालूम। लोग बोले इतने बड़े नहीं आता, तो फिर अब वो इधर की उधर की जोड़कर कड़ियां मिलाकर जवाब जो शरई मसाइल में वो पेश कर देगा। अब ये ज़रा मुहतात फिद्दीन के बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन ये तो एक इतना बड़ा मसला नहीं है मुहतात फिद्दीन, दीन में मुहतात। तो अब ये कि ज़बान में भी एहतियात करे, आंखों में भी एहतियात करे, देखने में, खाने में भी एहतियात करे, पीने में भी एहतियात करे। एहतियात जहाँ जहाँ दीनी मामलात हैं वहाँ एहतियात करे। तो मुसलमान का तो हर काम दीन के दायरे में होता है, हम तो उसके गुलाम हैं जो शाह खैरुल अनाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस काम में सवाब न हो वो काम करते ही नहीं थे। हर काम में सवाब मिलना चाहिए। तो हकीकत में यूं समझो कि
ہم محتاط فی الدین اس وقت بنیں گے جب ہم صحیح معنوں میں ثواب کے حریص بن جائیں، صرف وہ کام کریں جس میں ثواب ملے، ورنہ خاموش ہو جائیں، چھوڑ دیں وہ کام، ہم سے یہ ہو نہیں سکتا، بہت ہی کمزور ہے۔ تو کم از کم ہے کہ دین کے معاملے میں اس کو تو لگام دیں۔ اتنی بے باکی کے ساتھ بعض اوقات خطاب بھی ہو رہا ہوتا ہے، بیان بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بے باکی ہوتی ہے، بے احتیاطی کے الفاظ ہوتے ہیں، بعض اوقات جھوٹ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ جملہ خیر یہ جھوٹ تو اس کو نہیں کہیں گے، اب یہ کہ اب یا تو ایک کوئی مشہور و معروف شخصیت ہو، بہت بڑی علمی اس کی حیثیت، اور کوئی کہتا ہے کہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں، تو چلو سمجھ میں۔ اب میرے جیسا کوئی چھوٹا آدمی یہ کہے کہ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، تو اب کیا ذمہ داری ہے؟ خیر یا تو یوں اس کو لے لیں کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یا جو اس کو نام دیا جائے۔ اور مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اب یہ جملہ جو ہے نا، یہ یعنی کہ اس کا اسکیننگ اس کی ہونی چاہیے۔ اگر واقعی دکھ ہے تب تو کہنے میں حرج نہیں تھا، لیکن عام طور پہ یہ کیفیت ہوتی نہیں ہے۔ اب اگر دکھ کی کیفیت تھی تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ دکھ نہیں ہوتا، بلکہ ایک اندرونی خوشی ہوتی ہے اس میں۔ جب کوئی مد مقابل گرفت میں آتا ہے نا، تو اس میں ذرا اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کو جی چاہتا ہے کہ میں نے اس کو ایسی سنائی کھری کھری، کیا یاد کرے گا؟ اب پھر یہ کہنا کہ بڑے دکھ کے ساتھ آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ تو کسی نے کہا تو ہم اس پر جھوٹ کا الزام نہ لگائیں، کیونکہ اب ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کو بیچارے کو افسوس ہوا ہو، وہ کہہ رہے ہیں۔ ہم جب بولیں، اگر بولیں، ہم کم از کم اپنے دل پر تو غور کر لیں گے، دل کیا کہہ رہا ہے، خوشی تو محسوس نہیں کر رہا کہ یہ بڑا برا پھنسائی۔ یہاں دکھ کی کیفیت نہیں ہے، افسوس کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ خوشی کی کیفیت اگر ہے تو اس کا اظہار تو ظاہر بندہ کر نہیں سکتا، الفاظ میں تو نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ کہ اور بھی کئی جملے اس طرح ہو سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ تو خیر بات بات میں بولتے ہیں، بآسانی یہ بات بات میں بولتے ہیں کہ وہ آپ کو بآسانی مل جائے گا، بھلے جوڑے گھس جائے اپنے، بآسانی مل جائے گا۔ تو بآسانی بولتے کس کو یار؟ بآسانی مل جائے گا۔ وہ تو امید کرتا ہوں تو وہ تو ایک چٹکلا بنا تھا میرے ساتھ کہ ایک عیسائی بھائی جس کو مجھے پتا تھا کہ اس نے یہ کام کرے، یہ امید نہیں تھی مجھے، وہ تو دوسرے جو عیسائی بھائی تھے جو ہماری گفتگو ہوئی تو ان کا بھی پتا تھا کہ ان کو کوئی امید نہیں ہوگی، تجربہ میں تھا کہ یہ کام جلدی نہیں کرتے وہ عیسائی بھائی، تو انہوں نے شاید فون پر یا کسی کہ امید ہے کہ وہ کام آپ نے کر لیا ہوگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو امید ہے، جبکہ پتا ہے کہ وہ سستے اس نے نہیں کیا ہوگا، امید ہے آپ کو؟ اب تھوڑا ہاتھ پیر مارا، پھر ہتھیار ڈال دیے۔ جب امید نہیں ہے تو پھر جملہ کیوں بولا امید ہے؟ تو یہ بھی اصل زبان پہ ہمارے چڑھا ہوا ہے، بات بات پہ بولتے ہیں امید ہے آپ نے مطالعہ کر لیا ہوگا، استاد بھی اعلان کرتا ہوگا امید ہے آپ سب نے سبق یاد کر لیا ہوگا۔ اب یہ اپنے آپ سے پوچھے کہ آپ کو امید ہے کہ سب نے سبق یاد کر لیا ہوگا؟ تو امید کی جگہ میں یہ کوشش کرتا ہوں یہ الفاظ بولنے کی، اللہ کرے آپ سب نے سبق یاد کر لیا ہو، اللہ کرے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہو، یہ جملہ بولتا ہوں۔ تو اس میں پکڑ کی کوئی بظاہر گنجائش نہیں ہے، اللہ کرے تو ایک دعائیہ جملہ ہے۔ اس طرح کے لفظ جو ہے نا باپا، یہ ہمارے زبان پر ہے نا، اور ادائیگی کے وقت ان کے ہو سکتا ہے کہ معنی پر ہماری نظر نہ ہو، اور یہ عادتاً ہماری زبان سے نکل رہے ہوں، تو اس پر کوئی گرفت اب توجہ ہی نہیں ہے اور جملہ نکل گیا تو اب اس پہ کیا گرفت ہوگی؟ معنی پر بھی نظر نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر محتاط فی الدین بنیں گے کیسے؟ ہماری مطلب بے احتیاطیوں کا تو سچی بات ہے
कि मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे तो बोलना नहीं आता। खुद अपनी बात का मैं एहतसाब कभी करता हूं ना, तो मुझे समझ पड़ जाती है कि मैं कितने पानी में हूं। तो यूं हर एक गौर करे कि आप समझो कि 5 मिनट गुफ्तगू करें, अगर आप हुस्सास हुए तो आप खुद ही, हुस्सास नहीं हुए तो समझ नहीं पड़ेगी, या कोई हुस्सास उसको दे दें 5 मिनट की बातचीत या आपस की गुफ्तगू कि इसकी स्कैनिंग करें आप कि इसमें कितने झूठ, कितने मुबालगे, नाजायज मुबालगे, कितनी गीबतें, कितनी तोहमतें, कितनी बदगुमानियां हैं। हो सकता है कि शायद वो निकाल दे। इवन दीनी गुफ्तगू में भी बाज़ इस तरह के जरासीम हमारे उसमें शामिल हो जाते, हमारी जबान की बेहतियाती, हमारे जहन की बेहतियाती, और फिर भी हम मोहतात फिद्दीन तो मैं कहा मज़ारत में तशरीफ फरमा हो गए। अब होंगे तो गारों में छुपे होंगे। तो ये एक मुबालगा है कि यानी मोहतात फिद्दीन जो है ये बहुत कम रह गए। बाज़ों को यूँ होगा कि मैं बड़ा एहतियात करता हूँ, बहुत मोहतात हूँ, लेकिन ये होता नहीं है। अब आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अब ये दिल की कैफियत क्या है? अगर वाकई बड़ी खुशी हुई है, मरहबा, कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अगले की इससे बहुत दिलजोई होगी। खुशी हुई और बड़ी खुशी हुई बड़ी में खुशी। फर्क करेंगे। जी हाँ, तो अब ये कि ये बड़ी खुशी हुई है और आपने कहा तो बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी नीयत से कहेंगे कि इसकी दिलजोई होगी इस जुमले से, तो इसका भी सवाब पाएंगे। वरना ये कि अगर दिल में यूं कि यार ये कांटा पड़ पड़ा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अब बताइए फिर झूठ किस जानवर का नाम है? झूठ है ही खिलाफ वाक़े बात का नाम। यानी इसको आसान लफ्जों में हम यूं समझे कि सच का उलट झूठ है। अब सच ये है कि इसके आने से बोरियत हुई है और हम कह रहे हैं कि बड़ी खुशी हुई। खाली वैसे ही अगर भले पुरतपाक तरीके पर मिलना तो अच्छी बात है, बोरियत हो रही है तब भी पुरतपाक अंदाज में मिला तो ये गुनाह नहीं है। अच्छा तरीका ये कि अपने नफ्स को चलो मार रहा है कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी अच्छे तरीके से मिल रहा, लेकिन इसको लगाम जरूरी है। खुशी हुई तो खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई तो बड़ी खुशी हुई बोले, वरना आपसे मिलकर खुशी हुई। अब जैसे आमतौर पर ताजियत पर भी ये बोला जाता है, यानी ताजियत के लिए जो लोग आते हैं, मैं बड़ा अफसोस हुआ कि फुला का इंतकाल हो गया, आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा सदमा हुआ। हालांकि ना दुख हुआ होता है ना सदमा हुआ होता है, आमतौर पे कैफियत नहीं होती है तो आदमी ना बोले, दुआ कर दे, तसल्ली दे दे उसको, सब्र की तलकीन कर दे। ये काहे को बोलेगा मुझे दुख हुआ, जबकि नहीं हुआ। हुआ तो बोलने मारे जो नहीं है, दुख हुआ तो दुख बोल दे, बड़ा दुख हुआ तो बड़ा दुख बोल दे। इस तरह बीमार, शदीद बीमार है, बुखार में तप रहा है, पता चला उस 99 दर्जे बुखार था जो नॉर्मल का बिल्कुल पड़ोसी है, शदीद हालत खराब है, शदीद बीमार हो गया। मालूम किया तो पता चला कि वो थकन बहुत लगी थी, तो सोकर फ्रेश हो गया, उठा, हट जाओ हजरत की तबीयत नासाज है। ये तो मैंने अपने लिए बड़े नारे सुने किसी दौर में जब बयानात करता था ना, मैं कभी कभी बोलता था यार क्यों बोलते हो मेरी तबीयत नासाज है? कहाँ है तबीयत नासाज? खाली होशियारी बस, बोलने की खातिर बोलना। ये तो जाहिर है कि वो झूठ, धोखा फिर और किसको बोलते, लोगों को हटाने के लिए ये बोलना जरूरी तो नहीं है तबीयत नासाज है, हजरत बड़े थके हुए हैं। हालांकि बाज़ औक़ात बड़े थके हुए नहीं होते। अब 2 घंटे बयान किया तो थोड़ी बहुत तो थकन आदमी को लगती है, लेकिन बाजों में इतना मतलब पावर्स होते हैं कि वो नहीं थकते, घंटों बोलते नहीं थकते। तो ये कि ज़बान की बेहतियातियाँ बहुत ज़्यादा है। इसमें आप भी चाहें तो मिसालें दे सकते हैं मुझे, आप मिसालें बोले तो उस पर अपने गौर कर लेंगे कि ये झूठ है या नहीं है। बापा एक लफ्ज है इमरजेंसी, ये किस मौके पे बोला जाए? घर में फौतगी हो तो ही इमरजेंसी है, या घर वो बड़े भाई के सर में दर्द हुआ है तो सासा मुझे छुट्टी दे दें, घर इमरजेंसी हो गई है?
अब ये कि इमरजेंसी तो दोनों ही के लिए चल तो जाएगा कि कोई घर का फर्द सख्त बीमार हो गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, ये भी इमरजेंसी है। और अगर किसी की वफात हो गई तो भी इमरजेंसी। हमारे मदनी माहौल में ये सुना है इमरजेंसी का, अवाम में नहीं इमरजेंसी है। किसी की वफात हो गई तो क्लियर बोलते हैं वफात हो गई, इंतकाल हो गया। अहम काम, अहम है तो अहम काम, गैर अहम या नॉर्मल है तो काम पड़ गया था, अहम काम पड़ गया, ये इसको मजीद मुअक्कद करेगा ना। जो मतलब अगर दुरुस्त है तो ठीक है, वरना ये मुबालगा पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा मसरूफ रहता हूँ या मसरूफियत रहती है, ये बोलना कैसा? सांस लेना भी तो मसरूफियत है, बहुत मसरूफ हूँ। आपका काम मैं नहीं कर सका, मसरूफियत बहुत थी मेरी। अब अगर वाकई मसरूफियत सबब थी तो दुरुस्त है, सुस्ती कार फरमा थी तो झूठ है। ये अगर हम तो उसने जन रखेंगे सामने वाले के बारे में और सवाब कमाएंगे, बोलने वाला अपने आप को देख ले कि उसने क्या नीयत है। नाजिम और उस्ताद साहब हुस्न ज़न रख के छुट्टियां देते रहेंगे, यार ये कह रहे तो होगा। अब नाजिम साहब जिसको छुट्टी देनी है तालिब इल्म को, और आपने इमरजेंसी को भी रखा और काफ़ी चीज़ें रखी ना आपने। अब तालिब इल्म अगर कोई ऐसा कहता है, क्योंकि तलबा किराम है और हमारे मजलिस भी यहाँ मौजूद है, तो अब वो इमरजेंसी तो कहेंगे क्या इमरजेंसी, बापा ने फरमाते हैं इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी तो वो ना कि हॉस्पिटल में ले जाया गया। अब यहाँ हॉस्पिटल भी क्या, वो हमदर्दी बढ़ाने के लिए, क्लिनिक और हॉस्पिटल का फर्क भी नहीं करते। तो हॉस्पिटल गया था मैं, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, तो पता चला किसी MBBS डॉक्टर की क्लिनिक में ले गया था। अब इसको ही हॉस्पिटल बोलकर यानी कि इसको हेवी बना रहा है। हालांकि आपने सब्र का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन सब्र किसको बोलते हैं ये बहुत कम को पता होगा। तो मैं सही अर्ज कर रहा हूं, सब्र का सवाब कैसे मिले ये मैं आपको बताऊं। सब्र का सवाब कैसे मिले, मिसाल के तौर पर मेरे सर में इस वक्त दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सर में मिसाल के तौर पर सर में दर्द हो रहा है। अब मैंने इसकी जरूरत महसूस की कि कान में कह दिया सैम भाई को या लिख कर दिखा दिया कि यार वो जरा पेन किलर फुला टेबलेट, सर में दर्द हो रहा है, तो ये तो जरूरत है, ठीक। अच्छा, अब मैंने बिला जरूरत उसको कहा कि यार सर में बड़ा दर्द हो रहा है। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, अब ये जो मैंने किया ना, ये है बेसब्री। तो अब क्या, हम अपने करीबी सैम भाई को तो बोलते ही हैं यार आज थोड़ा यार पेट में दर्द हो गया है। अब सब्र का सवाब चला गया, क्योंकि बिला जरूरत बोला ना, जरूरतन 100 अफराद को बोला, भरे मजमे में बोला, मदनी चैनल पर ऐलान किया अपनी तकलीफ का, इंद जरूरा, तो हरज नहीं है, सब्र से खारिज नहीं होगा। वरना वो बसूरत दीगर के बिला जरूरत बोला, ये ही तो शिकायत है कि बंदे से इसने शिकायत की। तो ये हुक्म इसका मकरूह तंजीही का है, बंदे से शिकायत का। और बात सूरतों में कुफ्र होता है, तो खैर वो अल्लाह ताला पर एतराज पाया गया जैसे, तो फिर तो कुफ्र है। लेकिन ये सूरत नहीं होती, बस वो बंदे से बोलते जरूर है, आज थोड़ा यार तबीयत सुस्त थी, आज यार रात नींद नहीं आ रही थी। अब ये भी है तो तकलीफ ना, इजहार करने की हाजत क्यों पेश आई, इसलिए कि अगला कुछ दुआ करे या दवा दे, फिर तो हरज नहीं करे। डॉक्टर को बताया या किसी को भेजा कि यार वो डॉक्टर को बोलना हो रहा है, मुझे दवा चाहिए। तो अब यानी कि बेमकसद किसी एक को भी बोला, सब्र के सवाब से महरूम हो गया, बेमकसद। मकसद के तहत तो हमारे आम तौर पे बेमकसद होता है। आज जरा यार तबीयत बोझल हो गई थी यार, वो आज मैं आ रहा था, तानी रास्ते में मेरे पैसे किसी ने निकाल दिए, जेब कट गई, या वो फुला ने आज यार मुझे वो ऐसा झाड़ा है यार, बस मेरा मूड खराब है। यानी तकलीफ को आप देखें ना, तो तकलीफ तो लाखों किस्म की है। आज जरा बच्चे की तबीयत यार खराब हो गई थी,
तकलीफ हुई, ये भी बेसब्री है ना। आपने बोला कि इसको कि बच्चे की तबीयत खराब हुई है, ये सही कर देगा बच्चे को। अगर इस नियत से बोला हो कि ये बच्चे का चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और इसको दवा लेने के लिए बोला, तो चलो बेसब्री नहीं है कि आपने मकसद के लिए बोला। अब इसमें भी इतना बोला, जिसको जरूरतन बताया तो वो इतना बताया, जरूरत की कदर बताया या जरूरत से ज्यादा बताया, ये भी देखा जाएगा। अब नजले का बताने से गुजारा हो जाता है, वो चढ़ा है अंदर बुखार और इसकी हाजत नहीं है बताने की, तो उसको बोल यार तुम देख ही रहो ये नजला हुआ यार, अब मैं यार थोड़ा जा रहा हूँ आराम करो। अब मैं ये बोलूं साथ में कि नजला भी है, जो बुखार भी चढ़ा है, सर भी भारी हो रहा है, तो ये फिर गैर जरूरी इजाफी जो वजाहतें हैं ना, ये बाजू का सब्र के दायरे से निकाल देंगे। तो सब्र ये कि बस किसी को बताए नहीं बिला हाजत, ये इजहार का तरीका जबान से ही नहीं है। मुंह से भी जी, ना करें। तो ये भी हमदर्दी मांगने का एक तरीका है। लगता है हजरत को सर में बड़ा दर्द हो रहा है, बार बार यूं कर रहे हैं, तो ये मतलब हजरत फंसे, सवाब से गए। अगर मकसूद इजहार है, बेख्याली में कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन लोग देखते हैं तो मुंह बन जाता है। जैसे बुखार है और कोई अगर मिजाज पुरसी करने आएगा ना, उसको पता है कि बुखार है, 2 दिन से बुखार उतर नहीं रहा, अब ये मुंह बना कर कहने की क्यों जरूरत। थोड़ी देर पहले तो दरवाजे के बाहर गई थी, कह कह की आवाज, वो जैसे इयादत करने वाला आया तो मुंह फूल गया यूं करके और बैठ के मरीज बन गए। ये भी होता है। एक बार मैं एक मरीज की इयादत करने के लिए गया, अच्छा खासा बातचीत कर रहे थे, बेचारे की किस्मत कि मैंने देख लिया उसको, अच्छा खासा बैठा हुआ था, मैं जैसे ही गया ना वो लेट गया। यूं भी होता है मतलब। बहरहाल एक तकलीफें छुपाना अगर हम शुरू कर दें ना, तो बहुत की तकलीफें दूर हो जाएंगी, क्योंकि अगले को इंटरेस्ट नहीं होता। इन्हें हम पूछेंगे ना क्या हाल है, जवाब सुनने का हमको टाइम थोड़ी होता है, और अगला भी जवाब खूब देता है, क्या हाल है, तो अगला बोलता है आप कैसे हैं, तो वो दूसरा बोलता है बिल्कुल ठीक है, सामने वाला बोला सब कुछ ठीक है। ये तो गुफ्तगू है हमारी, यानी कि पूछने पर भी हमको जवाब सुनने की तौफीक नहीं है, और जवाब दे तो सुनने का जज्बा भी नहीं है। अब हमने तबीयत पूछी और वो एक्सरे रिपोर्ट और लेबोरेटरी टेस्ट के रिपोर्ट, और इस डॉक्टर ने यूं कहा, उस डॉक्टर ने यूं कहा, हम घड़ी देखें कि हम कब जान छूटे यार, इसको कहा तबीयत पूछ ली। हमारी हालत तो ये है। इसको बुजुर्गों ने तो बहरहाल ये के निफाक करार दिया है और इसकी बहुत मजम्मत की है कि जब यानी कि दिलचस्पी नहीं है तो पूछा क्यों उसकी तबीयत से। हमको दिलचस्पी वाकई आम तौर पर नहीं होती, हम सिर्फ रस्मी पूछते हैं। ना मुंह से जाहिर करें, ना जबान से कहें, ना इशारे से कहें, कुछ भी ना करें, पापा छुट्टी कैसे मिलेगी, और यहाँ ज़रूरत है, वाकई ज़रूरत है, तो तालिब इल्म कह तो सकता है ना उस्ताद को। कि अगर वो वाकई बीमार है हाँ, और वो कह रहा कि और छुट्टी तो फिर दुरुस्त है ना। ऐसा कोई रास्ता हो ना कि बोलना भी हो जाए ना, सवाब भी ना जाए। जब तक मरज की शिद्दत का इजहार नहीं करेगा उस्ताद उसको छोड़ेगा तो नहीं, छुट्टी तो नहीं देगा। तो मरज की अगर शिद्दत है तो अब ये इस शिद्दत के इजहार की जरूरत है, इसमें मुबालगा ना करें। अब ये अलग बात है कि इसको 2-4 तकलीफें हैं और वो एक तकलीफ से छुट्टी मिल सकती है, तो फिर उस तकलीफ का इजहार करें और दूसरी का इनकार भी ना करें कि मुझे बुखार आया हुआ है, बदन देखिए तप रहा है, अगर इजाजत हो तो मैं चला जाऊं। अब भले सर भी दर्द कर रहा हो, आमतौर पर बुखार में सर दर्द होता है, और जो नज़ला अगर शदीद हो जाए तो बाज़ औक़ात वो थोड़ा बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, बुखार चढ़ जाती है। तो ये क्या, बस वो ज़रूरतन बात करे, वरना घर वालों की भी बीमारी का इजहार ना करे। मेरी माँ बीमार है तो इसको ये हो गया है, तो वो हो गया है, क्योंकि इसको
जब तकलीफ है जब भी तो दूसरे के सामने बोल रहा है तो इस तकलीफ का इजहार न करे। हाँ, जिसको दुआ का कहना है तो वो अगर उससे कहता है कि मेरी माँ बीमार है दुआ करना, या माज़ल्लाह फुला फुला मरज मेरी अम्मी को हो गया है आप दुआ कर लें, अब्बू को हो गया है दुआ कर दें, या मुझे फुला फुला मरज है आप दुआ कर दें, ठीक है, इसमें अर्ज नहीं है, इसको बेसब्री नहीं कहेंगे, इसकी इजाजत है। गुनाह तो वो भी नहीं है बिला जरूरत इज़हार, मगर वही कि वो सब्र के सवाब से महरूमी। और ये मतलब लाख हम कोशिश करें ना, चूंकि आदत नहीं है, आम तौर पर हमारी आदत होती नहीं, ये बारीकी हमको पता भी नहीं होती, तो इसलिए वो इज़हार हो ही जाता है, ये एक प्रॉब्लम है। तो कोशिश इंशाअल्लाह। परेशानी बयान करने की सूरत ये भी समझ में आ रही पापा कि मुसलमानों को बदगुमानी से बचाने के लिए, मैं अपने शोबे के वाले से मिसाल लूँगा कि बाज़ औक़ात उस्ताद वक्त पर नहीं पहुँच पाता और रास्ते में गाड़ी का कोई प्रॉब्लम होता है या घर में कोई परेशानी होती है, अब वो उस्ताद जो 12 तलबा को तंबीह करता है कि आप वक्त पे आएँ, पाबंदी करें, अब वो उस्ताद खुद ही कभी को बार लेट हो जाए तो जहन में सवाल पैदा होता है यार उस्ताद हमें तो समझा रहा है लेकिन खुद लेट होता है, तो ऐसे औकात में अगर हाजत पड़ जाए तो आप मुसलमानों को बदगुमानी से बचाने के लिए भी उज़्र बताना जो है वो परेशानी बताना आप मज़ीद इशारा माशाअल्लाह, नहीं दुरुस्त है, फतह बाब गीबत भी होता है इससे कि अगर नहीं बताएंगे तो बुरा भला बोलेंगे उस्ताद साहब चलाते हैं, हमें बोलते खुद तो लेट आते। ये तो मैंने खुद मदनी चैनल पर चंद बार इसका वजाहत अपने ताल्लुक से भी की है कि मैं जो मदनी मुज़ाकरों में लेट हो जाता हूँ तो मेरी मजबूरियाँ हैं। जैसे कि अब ईशा की नमाज पढ़ी तो ईशा की नमाज, अब ये एक तो चढ़ने उतरने में भी इसका फ़र्क पड़ता है मेरा, तो मुझे आम तौर पर ये ईशा की नमाज पढ़ के फिर इस्तिंजा खाने जाओ, फिर वज़ू करो, इस तरह मुझे कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी तो पेशाब करके निकले, वज़ू खाने पर बैठे, दोबारा चलो पेशाब करने की तरह पेशाब लग गया, ऐसे भी होता है। तो ये मैंने वजाहतें इसलिए की है कि ये भी निगरान शूरा ने मुझे तहरीक दी कि आप ये वजाहत कर दिया करें, नहीं तो लोग ये बोलेंगे यार खुद वक्ती पाबंदी की ताकीदें करता है और अपना हाल ये है कि मदनी मुज़ाकरे का ऐलान है कि इतने बजे होगा और ये 1 घंटा लेट आ रहा है, 1 घंटा लेट आ रहा है। तो यूं मैं भी वजाहत करता हूँ आपने जो वजाहत बदगुमानी फरमाई से ना, और बचाने के लिए। अब ये उज़र जो अमीर सुन्नत ने बयान किया ना, ये एक ऐसा मसला है कि ये जब भी ताखिर होगी ना तो किसी को ये फौरन चला जाएगा कि यार एक सही इन्होंने बयान किया था उसे यही हो। अब उस्ताद साहब कहेंगे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, चलो आज उस्ताद साहब लेट आ गए, कल उस्ताद साहब कहेंगे कि मेरी गाड़ी में पंचर हो गया था, तो अब ये उज़र जो ना उस्ताद साहब का बार बार ताखिर का, तो अब ये या तो रोज़ाना को उज़र तब्दील होगा, तो ये भी बदगुमानी से बचने ना बचाने के हवाले से गौर कर लें कि बाज़ औक़ात आज़ार एक जैसा नहीं होता, और बार बार एक ही जैसा उज़र पेश करते रहेंगे और ताखिर से आते रहेंगे तो भी गलतफहमी पैदा होगी कि यार। और फिर दूसरी बात उज़्र होने की सूरत में ये बेसब्री होगी यानी, ये मेरा सवाल है। अब वो नहीं, आपका सवाल दुरुस्त है और ये रोज रोज ये होता भी नहीं होगा, ये रोज का नहीं होता, कभी कभार ये मैं अपना तो मसला अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, नहीं मैं है, जनरली लेकिन जनरली मैंने एक जी हाँ। सवाल किया है। ट्रैफिक इत्तेफाक से जाम हो गया, वो जिस बस में आ रहा था उस बस को कोई हादसा या वहां हादसा हुआ पड़ा था और रोड ब्लॉक हो गया, कोई भी सबब हो सकता है, बारिश आ गई, तो अब ये कह ये बताने में अगर चाहिए परेशानी तो हुई उस्ताद साहब को, तो यहाँ वजाहत करने में हर्ज नहीं है इस नीयत से कि ताकि तलबा किराम को बदगुमानी ना हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो माइक की एक बरकत ये भी है, मुझे सलामती की दुआ मिल जाती है। क्या शान है मेरे माइक की। जज़ाकल्लाह। चलिए भाई, और लेजा भी थोड़ा तब्दील हो जाता है माइक। इरशाद। जैसे कई इस्लामी भाई और असाज़े किराम आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं, तो पंजाब से भी इस्लामी भाई हाजिर बारगाह हुए अभी हैं। तक खत्म नहीं हुई मेरी। तो अब कई इस्लामी भाई ये बताते हैं कि बापा की बारगाह में जब बापा के पास हाजिरी हो, बापा की बारगाह में हाजिरी हो तो हमारे लिए दुआ फरमाइएगा, दुआ के लिए अर्ज़ करना, साथ में कोई बीमार हो तो उसके लिए भी इसके हवाले से वो ये कह देता है कि फ़ौरन ही कि मैं ज़रूर इंशाअल्लाह सलाम अर्ज़ करूँगा या फिर आपके लिए दुआ के लिए मैं अर्ज़ कर दूँगा, लेकिन वो जल्दी में भी होता है और फिर इस पर वो कह देता है, लेकिन उसके दिल में नहीं होता कि मैं सलाम अर्ज़ करूँगा। या बाज़ इस्लामी भाई कहते हैं कि मेरा नाम लेकर बापा से दुआ करवाना या मरीज़ के हवाले से, तो वो वक्ती तौर पर तो कह देते हैं, फिर
ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اتنے سارے نام کہاں سے ذہن میں رکھوں گا، اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو جھوٹ کے حوالے سے یہ آپ نے جس طرح پوچھا، ہاں کہتے وقت اگر یہ نیت تھی کہ میں نہیں بولوں گا اور اس کو ترخانے کے لیے ہاں بول دیا، تو یہ تو ہے وعدہ خلافی۔ حدیث پاک میں وعدہ خلافی تعریف یہی ہے نا کہ وعدہ کرتے وقت نیت یہ ہو کہ میں نے یہ پورا نہیں کر رہا ہے، تب وعدہ خلافی ہے۔ اور اگر وہ بہت سو نے بول دیا اور یاد نہ رہا یا موقع نہ مل سکا بتانے کا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو گناہ نہیں ہوا اس میں۔ چلیے آپ بول دیجئے اگر کہ بھئی آپ کو ہمارے سارے ملتانیوں نے سلام بولا ہے، اگر بولا ہے تو یہ سارے شہر والوں نے سلام بولا ہے۔ یہ مدنی مذاکرے بہت سنے انہوں نے، سمجھ گئے میرا حسن زن ہے، یہ بھی جملہ صحیح نہیں ہے۔ سارے شہر والوں نے سلام بولا ہے، سب عیسائی بھائیوں نے سلام بولا ہے، سب نے کہا بولا ہوتا ہے۔ تو جن جن عیسائی بھائیوں نے آپ کو سلام بولا ہے ان کا سلام قبول کر لیں، یہ محتاط جملہ۔ باپا یہاں یہ بھی رہنمائی فرمائے، ہم نے نیت یہی تھی کہ ہم سلام پہنچا دیں گے، موقع نہیں ملا یا موقع ملا ہم بھول گئے، تو اب کیا یہ وعدہ خلافی ہوگی؟ کیا ہمارا اس صورت میں بھی کوئی ہوگا؟ اگر ہاں کہتے وقت نیت تھی تب تو بعد میں اگر ارادہ ہی بدل گیا اور نہیں بتایا تب بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ وعدہ خلافی یہ نہیں ہے، اس وقت کی نیت کا اعتبار ہے، لیکن یہ کہ پورا کرنا چاہیے۔ جیسے اب کسی نے آپ کو دعوت دی، اس وقت تو پکی نیت تھی کہ آپ جائیں گے، دعوت بھی خصوصی تھی۔ خصوصی دعوت وہی ہوتی ہے کہ آپ کو دعوت دی تو آپ کی وجہ سے دعوت ہے، ورنہ دعوت ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے دعوت قبول کی اور نیت بھی تھی اور بعد میں ارادہ بدل گیا، چھوڑو یار کون جاتا ہے، تو گناہ گار اگرچہ نہیں ہے لیکن وہاں نہیں جائیں گے تو اس پر اثر اچھا نہیں پڑے گا۔ اور اگر آپ بولیں گے نا کہ یار اس وقت تو نیت تھی اور پھر بدل گئی، تو ارے مولانا یار چکر بہت دیتے ہیں، اب ہم کو تھوڑی مسائل پتہ ہوتے، تو اس لیے جو کہا اس کو نبھانا تو چاہیے۔ تو سلام اگر پہنچائیں گے تو یہ بھی کار ثواب تو ہے، کوئی سلام کہے کہ کہہ دینا۔ اب بعض لوگ تو بغیر بولے بولتے ہیں، میں جہاں جہاں مزار پہ گیا تھا میں نے آپ کا سلام بول دیا۔ ارے بھائی آپ کو کہاں میں نے بولا تھا کہ میرا سلام بول دینا؟ یوں بھی کرتے ہیں۔ اب بعضوں کو بولو کہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنا، حاجی صاحب خود ہی وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں، پٹیو۔ لیکن یہ محل نہیں ہے ان کے جواب کا، سلام پہنچانا ہے۔ یہ بولنا کہ میں آپ کو دعا میں بھولتا نہیں ہوں، اگر واقعی نہیں بولتے تو مدینہ، اگر اچھا لگانے کے لیے بول رہے ہیں تو پھر دعا نہیں کر رہے، بھول جاتے ہیں، تو جھوٹ ہے۔ پاپا پیر صاحب نے سلام نہیں کہا اپنے مرید کو کہ میرے لیے جو نا دربار شریف پر اگر حاضری ہو تو سلام عرض کر دینا۔ جیسے میرا یہ اس طرح کا سلسلہ ہوا کہ شاہ رخ نرم دربار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، تو آپ کا بھی میں نے اپنی طرف سے سلام پیش کر دیا۔ اب یہ پیش کرنا کیسا؟ جملہ کیا عرض کیا ہوں کہ اگر یہ بولا کہ الیاس نے آپ کو سلام بولا ہے، یہ بولا نہیں، ہمارے پیر صاحب کا سلام ان کی طرف سے بھی قبول فرمائے۔ یعنی تو میں نے سلام، میں نے تو آپ کو کہا نہیں تھا کہ میرا سلام کہہ دینا۔ بارگاہ رسالت میں حاضری میں بارہا یہ اس طرح عرض کیا کہ مجھے بہت بولتے تھے سلام کا اپنے مدنی ماحول کے حساب سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ کو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا سلام قبول فرما لیجیے۔ جس نے آپ کے لیے سلام عرض کیا ہے مجھے کہا ہے کہ سلام عرض کرنا، ان کا قبول کر لیجیے۔ اس طرح کے جملے محتاط ہونے چاہیے۔ جھوٹ کی مثالوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ حضور تھوڑا سا وقت عطا کر دیں تو وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، یا پھر ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس، دیگر ایکٹیویٹی یعنی یوز کرتے ہیں، موبائل کے اندر نیٹ کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں، یعنی فضول وقت کے اندر اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ کوئی موبائل فون میں مصروف ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی وجہ سے اس کے بعد ٹائم نہیں ہے، تو اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں، تو غلط تو نہ ہوا نا، جھوٹ تو نہ ہوا۔ تلاش علم عبادت
बस तस्बीह है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है, जहाद जुस्तुजु